Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic of graph theory, that is the planar graph and its properties. So here we will discuss about the planar graph and the Euler's formula, which is most important for the semester exams. So let us start with our topic. So what is a planar graph? A planar graph is nothing but a graph in which that can be drawn in a plane in such a way that any two of its edges are either meet at only their end vertices or they do not meet. इसका मतलब यह होता है कि कोई भी एक ग्राफ को हम लोग एक ही प्लेन में ड्रॉ करेंगे. अगर एक्स वाई जेड हमारा तीन प्लेन है, थ्री डायमेंशनल है, तो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर वाई जेड प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं या फिर एक्स जेड प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं. और वो ग्राफ कैसा होगा? उस ग्राफ पे अगर कोई भी दोनों एज को अगर हम लोग लेंगे तो वो दोनों एज एंड वर्टेक्स पे मीट करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा. दैट इज नथिंग बट एनी टू एजेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. दैट इज नथिंग बट ए प्लेनर ग्राफ. तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करके तुम लोगों को प्लेनर ग्राफ के बारे में बोला है. सिंस यू कैन सी दैट AC and BD आर लुकिंग लाइक टू डायगोनल्स which are intersecting. So if it is look like this, we cannot draw the graph in like this manner. We will simply take out any one of the diagonal outside and we will join it by B and D like this, making any curve. So we can redraw the graph like this. So you can see that all the edges present in this graph do not intersect each other, and also the graph is situated in a single plane. Similar result happens for this graph also. So these are the examples of some planar graphs. Now we know that from the isomorphism of two graphs, that isomorphism of two graphs is nothing but meaning of the equality of two graphs. तो अगर कोई भी ग्राफ एक प्लेनर ग्राफ के साथ आइसोमॉर्फिक होता है तो वो ग्राफ फिर से प्लेनर बन जाता है. ठीक है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम लोग को याद रखना है. और जो ग्राफ प्लेनर नहीं होगा उसको हम लोग कहेंगे नॉन प्लेनर ग्राफ. अभी प्लेनर ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एग्जाम एप्लीकेशन है और वो है फेस या फिर रीजन. सो व्हाट आर द फेस एंड रीजन? अगर कोई एक रीजन के ऊपर हम लोग कोई भी प्लेन के ऊपर हम लोग अगर कोई भी एक प्लेनर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो प्लेनर ग्राफ पूरा जो प्लेन है उसको सम एरिया पे डिवाइड करेगा, सम फाइनाइट नंबर ऑफ एरिया पे वो डिवाइड करता है. सो दीज फाइनाइट नंबर ऑफ एरियाज आर नथिंग बट नोन एज द रीजन्स. Here we can see that the whole plane can be divided into these regions, where some bounded areas are there which are the bounded region. R1, R2, R3 are the bounded region and R4 is the exterior region that is common to every region here. So for every planar graph we can have some finite number of regions, some of which are bounded and exactly one will be unbounded. The next thing that we have to learn, that is the edge subdivision. तो edge subdivision क्या होता है? देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है और मैं तुम लोगों को ये डेफिनेशन समझा देता हूँ. समझ लो हमारे पास कोई एक ग्राफ है और जो ग्राफ क्या है, प्लेनर भी हो सकता है, नॉन प्लेनर भी हो सकता है. ऐसा कोई बात नहीं है कि ये एज सबडिविजन प्लेनर ग्राफ के लिए होता है. सपोज वी हैव ए ग्राफ लाइक दिस and A and B, these two are vertices which are joined by an edge E. What is mean by edge subdivision? We can pick up any one of the edge from this graph and we can remove this edge from this graph. But whenever we have to remove this graph, this edge, we have to remember that one new vertex will enter to the graph and B will be joined to that new vertex and that new vertex will join to A. Instead of writing E, we will simply neglect the edge E or we will remove the edge E. तो कोई भी अगर कोई ग्राफ है जहां पे A और B ऐसे करके कोई एज है जिसके बीच में E है, तो वो E एज को हम लोग हटा सकते हैं. कैसे हटाएंगे? एक न्यू वर्टेक्स लाएंगे. से यहाँ पे D वर्टेक्स मैंने लाया है और B के साथ D को ज्वाइन करना है, D के साथ A को ज्वाइन करना है बाई सम न्यू एजेस E1 एंड E2. और E को यहाँ पे मैंने डॉटेड करके रखा हुआ है, इसका मतलब E यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या है? एक एज को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे? न्यू एक वर्टेक्स से और दोनों न्यू एजेस से. तो ये प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एज सबडिविजन. ठीक है, तो एज सबडिविजन कहाँ पे लगता है? देखो
A graph obtained from another graph G by a sequence of H subdivision is nothing but known as the homeomorph of G. अगर हमारे पास एक ग्राफ है और उसके ऊपर हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ एज सबडिविजन अप्लाई कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एज सबडिविजन अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ग्राफ का लुक चेंज हो जाएगा, वो ग्राफ टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिग्री विल बी चेंज, वर्टेक्स विल बी चेंज। लेकिन जो ग्राफ हम लोग को मिलेगा, जो न्यू ग्राफ हम लोग को मिलेगा, उस ग्राफ को हम लोग कहेंगे दैट इज द होम्योमॉर्फ ऑफ द प्रीवियस ग्राफ। ओके, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न दैट इज द कार्टोस्किस ग्राफ, very important for exam. What is a Kartosky's graph? There are basically two Kartosky's graph. One is known as the Kartosky's first graph, other is known as the Kartosky's second graph. So what is a Kartosky's graph? Any complete graph with 5 vertices is known as a Kartosky's first graph. Any complete graph with 5 vertices. यहाँ पे मैंने Kartosky's first graph को ड्रॉ करके रखा है, ठीक है ना, जहाँ पे 5 वर्टेक्स रहेगा और वो ग्राफ कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब क्या था? Between any two pair of distinct vertices there must be an edge. Kartosky's second graph क्या होता है? A regular connected graph with 6 vertices and 9 edges is known as the Kartosky's second graph. The graph will be look like this. The notation of the Kartosky's second graph is nothing but K33. So if we draw it in another way, the graph will be look like this. So it is nothing but the complete bipartite graph having 9 vertices. So you can also say a complete bipartite graph having 9 vertices is nothing but Kartosky's second graph. So what is the definition of a Kartosky's graph? Any graph which is homeomorph to Kartosky's first graph or second graph will be known as a Kartosky's graph. तो Kartosky's first graph या फिर second graph से अगर कोई भी ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं by process of the H subdivision, तो वो ग्राफ को हम लोग कहेंगे ये Kartosky's ग्राफ है। अभी चले आते हैं कुछ थ्योरम्स पे। पहला एक थ्योरम है, ये ऑब्वियस थ्योरम है, इसको मैं समझा देता हूं। देखो, ए ग्राफ G इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ एवरी होम्योमॉर्फ ऑफ इट इज प्लेनर। ए ग्राफ G इज प्लेनर इफ एंड ओनली इफ एवरी होम्योमॉर्फ ऑफ इट इज प्लेनर। सो इसका मतलब यह है, सपोज एक ग्राफ G प्लेनर ग्राफ है तो उसका होम्योमॉर्फ भी क्या होगा? प्लेनर होगा। या फिर एक ग्राफ का होम्योमॉर्फ अगर प्लेनर होता है तो वो जो मेन ग्राफ है वो खुद ब खुद क्या होता है? प्लेनर होता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो समझ लो हमारे पास G एक ग्राफ है और जो ग्राफ क्या है? प्लेनर ग्राफ है, और H G का एक होम्योमॉर्फ है। तो हम लोग को प्रूफ करना है H क्या होगा? H प्लेनर होगा। तो H अगर होम्योमॉर्फ है तो इसका मतलब H के ऊपर माने G के ऊपर हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ H सब डिवीजन अप्लाई किए हुए। एज सब डिवीजन अप्लाई करने के बाद ही हम लोगों को क्या मिल रहा है? एज मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ प्लेनर है और उसमें एक एज को हम लोग रिमूव कर रहे हैं न्यू एक वर्टेक्स से और दोनों न्यू एजेस से, तो वहां पे क्या होता है? वो ग्राफ खुद ब खुद प्लेनर ही रहता है, क्योंकि आफ्टर मेकिंग एनी एज सब डिवीजन द ग्राफ प्लेनर ग्राफ स्टिल बिकम्स ए प्लेनर ग्राफ। तुम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करके, कोई भी एक प्लेनर ग्राफ ड्रॉ करके इसको चेक कर सकते हो। Now the only thing that will change may change, that means the number of region. Number of region बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, लेकिन ग्राफ प्लेनर ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो H ग्राफ जिसका होम्योमॉर्फ है तो वो होम्योमॉर्फ क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली प्लेनर होगा। और कॉन्वर्स भी सिमिलर ही है। तो कोई भी एक होम्योमॉर्फ लेंगे और जो ग्राफ प्लेनर होगा, तो अगर हम लोग H सब डिवीजन को नहीं अप्लाई करेंगे तो मेन ग्राफ पे हम लोग वापस आ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ एजेस विल रिड्यूस्ड एंड द ग्राफ बिकम्स प्लेनर ग्राफ, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स के लिए। ये थ्योरम एग्जाम पे जनरली आता नहीं है, बहुत ही छोटा है, इसीलिए नहीं आता है। अभी चले आते हैं मेन जो हमारा थ्योरम है, तीनों थ्योरम है यहाँ पे इस चैप्टर पे, दैट इज द ऑयलर्स फॉर्मूला, जनरलाइज्ड ऑयलर्स फॉर्मूला एंड अनदर एप्लीकेशन ऑफ ऑयलर्स फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला एग्जाम पे ऑल्टरनेट ईयर पे देता है, तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल पे तीनों में से एक या फिर दो आता ही है। तो लेट अस स्टार्ट विद द ऑयलर्स फॉर्मूला। व्हाट इज ऑयलर्स फॉर्मूला? ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G with n number of vertices and e number of edges
determines f equal to e minus n plus 2 number of faces or region। तो ये थ्योरम स्टेट कर रहा है कि अगर हमारे पास एक कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है जहां पे n नंबर ऑफ वर्टेक्स है, e नंबर ऑफ एजेस है, तो वहां पे कितना हम लोग को रीजन मिलेगा या फिर फेस मिलेगा, e minus n plus 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट टू प्रूव दिस थ्योरम। We will apply the principle of mathematical induction to prove this theorem, and we will apply the principle of mathematical induction on the number of region, that is f। Say for f equal to 1, तो f equal to 1 का मतलब क्या है, एक ही रीजन है। So अगर एक रीजन है तो ग्राफ पे क्या नहीं होगा, कोई साइकिल नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई साइकिल रहता है ग्राफ पे तो वो एक बाउंडेड रीजन देता है। तो अगर एक ही रीजन है तो इसका मतलब पूरा एक्सटीरियर रीजन ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ग्राफ पे साइकिल प्रेजेंट नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जो कनेक्टेड है और जो एक ही रीजन देता है, वो ग्राफ है ट्री। दैट इज ए कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ इज नथिंग बट ए ट्री। सो सिंस द ग्राफ इज कनेक्टेड एंड हैविंग नो साइकिल and it has exactly one region, so the graph must be a tree। So we know from the previous semester that if a tree has n number of vertices, then there will be n minus 1 number of edges। So e का वैल्यू हो गया n minus 1, तो e minus n plus 2 का वैल्यू क्या होगा, e equals to n minus 1 minus n plus 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्या था, f का वैल्यू था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट ट्रू है किसके लिए, f इक्वल टू 1 के लिए। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, 1 के लिए ट्रू दिखाने के बाद हम लोग पकड़ते हैं m के लिए ट्रू है, और बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे m प्लस 1 के लिए ट्रू है। सो लेट अस स्टार्ट और एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर f इक्वल टू m नंबर ऑफ रीजन्स, जहां पे m इज पॉजिटिव, m ग्रेटर देन 1। 1 के लिए तो ऑलरेडी ट्रू है, तो m ग्रेटर देन 1, ठीक है। दैट इज फॉर ए ग्राफ g विथ a नंबर ऑफ एजेस एंड n नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड m नंबर ऑफ रीजन will satisfy this equality, that is m will be equal to e minus n plus 2। that is the assumption of the mathematical induction। स्टेप 2, तो अभी हम लोग को क्या करना है, a प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाना है। सो हम लोग पकड़ रहे हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है g जो कनेक्टेड है, प्लेनर ग्राफ है, और जहां पे m प्लस 1 नंबर ऑफ रीजन है, और जो ग्राफ पे n नंबर ऑफ वर्टेक्स है, e नंबर ऑफ एजेस है। तो m प्लस 1 के लिए भी यही रिजल्ट आना चाहिए, e माइनस n प्लस 2 आना चाहिए। राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सिंपली m प्लस 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगर तो यहाँ पे देख लेते m तो 1 से ज्यादा है, तो m प्लस 1 ऑटोमेटिकली क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो m प्लस 1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसमें इसका मतलब यह है कि ग्राफ पे मोर देन 1 रीजन है। तो ग्राफ पे मोर देन 1 रीजन कब हो सकता है, अगर ग्राफ कोई साइकिल या फिर सर्किट को कंटेन करता है। तो ग्राफ तो क्या नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, क्योंकि m प्लस 1 ग्रेटर देन 1 है। नंबर ऑफ रीजन इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स द ग्राफ कैन नॉट कंटेन, मैंने मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 सर्किट और साइकिल। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, समझ लो ये ग्राफ है हमारा लाइक दिस। ओके, दिस इज आवर ग्राफ and P be any edge between two vertices A and C। Now अगर हम लोग ये P edge को यहां से रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, देखो ये ग्राफ तो प्लेनर ग्राफ है, तो यहां से अगर कोई भी एज को हम लोग रिमूव करेंगे तो वो ग्राफ क्या होगा, प्लेनर ही रहेगा, क्योंकि कोई भी प्लेनर ग्राफ से कोई भी अगर एज को रिमूव करते हैं तो वो ग्राफ प्लेनर रहता है। मोर ओवर क्योंकि ये एक साइकिल है, साइकिल से भी कोई अगर एज को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो वो ग्राफ कनेक्टेड ही रहता है। सिंस इट इज ए कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ, सो आफ्टर रिमूविंग एन एज फ्रॉम द साइकिल इट इज स्टिल रिमेन कनेक्टेड एज वेल एज प्लेनर। तो g माइनस पी कनेक्टेड हो गया, प्लेनर भी हो गया, और एक रिमूव एज हम लोग यहां से रिमूव कर चुके हैं। तो अगर g माइनस पी लिखते हैं तो यहां पे देखो क्या होता है, कोई भी एज अगर कोई भी एक साइकिल से हम लोग रिमूव करते हैं तो वो ग्राफ प्लेनर है, कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, वो क्या होता है, अगर R1 R2 दोनों रीजियन था, यहाँ पे बीच में हमारा एक एज था P, अगर ये P एज को हम लोग यहां से हटा देते हैं तो R1 R2 दोनों मिलके एक रीजन हो जाता है। सो व्हेनेवर यू रिमूव एनी एज फ्रॉम ए साइकिल
two or more region may combined. So one region will getting loss. तो पहला ये ग्राफ पे कितना रीजन था, तीनों रीजन था, R1 R2 R3, दैट इज द एक्सटीरियर रीजन। लेकिन अगर हम लोग P एक एज को यहां से हटा देंगे तो ग्राफ पे कितना रीजन बचेगा, एक है बाहर और एक है अंदर, R1 R2 दोनों हो जाएगा। यही मैं यहां पे बोला हूं कि इफ वी रिमूव एन एज फ्रॉम द ग्राफ देन इट विल हैव एग्जैक्टली वन रीजन लेस। सो m+1 हमारा रीजन था, यहां से एक रीजन घट जाएगा, दैट इज m regions will be there. Now by our assumption G minus P will have how many number of, G minus P पे अभी कितना रीजन है, m रीजन है। तो अगर m रीजन है तो वो ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो m रीजन के लिए हम लोग को क्या मिलेगा, E-1 माइनस n+2। E-1 मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ग्राफ पे कितना एजेस था, E नंबर ऑफ एजेस था, और P जो एज को अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो ग्राफ में अभी कितना एज है, E-1 एजेस है। तो m इक्वल टू E-1 माइनस n+2। तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं तो -1 को लेफ्ट साइड पे लेके चले आओ तो वो क्या हो जाएगा, m+1 माइनस m+1 इक्वल टू E-n+2। तो हम लोग देख सकते हैं कि f इक्वल टू m+1 के लिए भी ये इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये इक्वालिटी सेटिस्फाई होगा। दैट इज बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द नेचुरल नंबर f. Clear? Hence we have the theorem. Very important for exam. Try to understand and try to write down by yourself. Okay, so let us go to the next theorem, that is the generalized version of the Euler's formula. यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है, ए प्लेनर ग्राफ G with n number of vertices and e number of edges and k number of connected components determine f equal to e minus n plus k plus 1 number of region. तो पहला जो हमने थ्योरम अभी प्रूफ किए है वो थ्योरम है एक कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे ये जनरलाइज हुआ है k नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए। तो ये थ्योरम पे अगर k का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो f इक्वल टू क्या होता है, e माइनस n प्लस 1 दैट इज e माइनस n प्लस 2। तो हम लोग ऑयलर्स फॉर्मूला पे बैक कर सकते हैं बाय पुटिंग k इक्वल टू 1। तो ये है जनरलाइज फॉर्मूला फॉर ऑयलर्स थ्योरम। अभी इसको प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे देखो। इट इज गिवन दैट इन दिस ग्राफ देयर आर k नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट, सो वी आर कंसीडरिंग g1 g2 gk आर द कनेक्टेड कंपोनेंट्स वेयर ईच gi हैज ei नंबर ऑफ एजेस, ni नंबर ऑफ vertices and each determines fi नंबर ऑफ रीजन। हर एक कंपोनेंट ei नंबर ऑफ एज है, ni नंबर ऑफ vertex है और fi नंबर ऑफ रीजन को डिनोट कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। देन बाय ऑयलर्स फॉर्मूला व्हाट वी कैन से दैट fi विल बी इक्वल्स टू ei माइनस ni प्लस 2 बाय द प्रीवियस थ्योरम फॉर इट इज हैपन फॉर i इक्वल्स टू 1 अप टू k। अभी देखो अगर ये ग्राफ प्लेनर है तो सम इंटीरियर रीजन्स विल बी देयर एंड देयर विल बी एग्जैक्टली वन एक्सटीरियर रीजन। तो बाहर एक ही कॉमन रीजन है हर एक कंपोनेंट का, जितना भी कंपोनेंट होगा g1 g2 gk, ये तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो g1 g2 gk आर द k नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो सभी कंपोनेंट का बाहर एक ही कॉमन रीजन होगा, एक्सटीरियर रीजन इज कॉमन टू एवरी कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ इंटीरियर रीजन कितना होगा, हर एक कंपोनेंट से अगर एक रीजन को हम लोग हटा देंगे तो नंबर ऑफ इंटीरियर रीजन हर एक कंपोनेंट के लिए हम लोग को मिल जाएगा। हेंस नंबर ऑफ इंटीरियर रीजन फॉर ईच कंपोनेंट इज fi माइनस 1। fi माइनस 1 अगर इंटीरियर रीजन है तो ग्राफ पे k नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर रीजन कितना होगा, f1 माइनस 1 प्लस f2 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट fk माइनस 1 फॉर k कंपोनेंट्स। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। समेशन i इक्वल्स टू 1 टू k fi होगा और -1 कितना टाइम ऐड हुआ है, k टाइम्स ऐड हुआ है तो यहाँ पे माइनस k हो जाएगा। अभी fi का मतलब क्या है, ei माइनस ni प्लस 2, यहाँ पे लिख देते हैं ei माइनस ni प्लस 2। अभी ये समेशन किसके ऊपर रन कर रहा है, वहाँ i इक्वल्स टू 1 टू अप टू k, तो ये अलग हो गया, ब्रेक करके लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 टू अप टू k ei माइनस i इक्वल्स टू 1 टू अप टू k ni प्लस 2 इंटू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू अप टू k, तो 2 k टाइम्स ऐड होगा तो 2k हो जाएगा माइनस k रहेगा। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो समेशन ei का मतलब है e टोटल नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, समेशन ni का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ एंड प्लस k हो जाता है।
तो ये हो गया पूरा ग्राफ का इंटीरियर रीजन। तो जब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट किए थे वहां पे एक्सटीरियर रीजन को हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके थे, ठीक है। तो एक्सटीरियर रीजन को लेना है क्योंकि हम लोग टोटल रीजन को चाहते हैं। Therefore, the total number of region including the exterior region it will be what? E minus n plus k plus 1. Hence the theorem. ठीक है, ये तीनों थ्योरम ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे, एक या दो तो आएगा ही आएगा। तो अच्छे तरीके से मेरा नोट को कॉपी पे लिख लो। नेक्स्ट थ्योरम है G be a simple connected planar graph. Simple connected planar graph means that G has no self loop or parallel edges. G be a simple connected planar graph with n number of vertices, e number of edges and f number of region. Then E will be greater than equal to 3 by 2f and E will be less equal to 3n minus 6, जहां पे n का वैल्यू 3 या फिर उससे ज्यादा होगा। E will be greater equal to 3. नंबर 1 ही कुछ लेंदी है, नंबर 2 एक लाइन का प्रूफ है। तो नंबर 1 को प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। सो इफ वी थिंक अबाउट n एग्जैक्टली इक्वल टू 3 वर्टिसेस है, तो ग्राफ तो सिंपल है, तो इसके मतलब ग्राफ में कोई सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज नहीं होगा। नो सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस, ठीक है। तो अगर ग्राफ में तीनों वर्टेक्स है तो ग्राफ कैसा दिखेगा? आइदर ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा। क्योंकि ग्राफ पे कोई सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज नहीं होगा तो ग्राफ विल बी सिंपल। तो आइदर ग्राफ ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा दिखेगा। तो अगर ग्राफ ऐसा दिखता है तो कितना एज होगा? यहाँ पे दोनों एज होगा। अगर ग्राफ ऐसा दिखता है तो कितना एज होगा? यहाँ पे तीनों एज होगा। अगर दोनों एज है तो हाउ मेनी रीजन्स विल बी देयर? एग्जैक्टली वन रीजन, दैट इज द एक्सटीरियर रीजन, सिंस इट इज नॉट बाउंडेड। एंड इफ द ग्राफ इज लुक लाइक दिस देन हाउ मेनी रीजन्स विल बी देयर? एग्जैक्टली 2 रीजन। तो अभी हम लोग देख सकते हैं इफ E इक्वल टू 2 देन F इक्वल टू 1। तो इफ यू पुट इन द इनइक्वालिटी E इक्वल टू 2 and F equal to 1, obviously 2 is greater equal to 3 by 2, that is 1.5. Inequality is satisfied. And if you put E equal to 3, F equal to 2 here, then 3 will be greater equal to 3 by 2 into 2, that is 3 greater equal to 3. Again inequality is satisfied. So for both cases the inequality is getting satisfied whenever n equal to 3. तो अभी हम लोग करते हैं n का वैल्यू 3 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? 4 या फिर 4 से स्टार्ट होगा। इफ n इज ग्रेटर इक्वल टू 4 देन व्हाट विल हैपन? अगर n ग्रेटर इक्वल टू 4 है और वो ग्राफ है हमारा ट्री, क्योंकि यहां पे बोला है कि ये सिंपल कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ है। समझ लो अगर ग्राफ ट्री है तो ट्री में अगर n नंबर ऑफ वर्टेक्स होगा तो हाउ मेनी एजेस विल बी देयर? देन n minus 1 edges will be there. And for a tree, how many region will be created? Exactly 1 region will be created. So F will be equal to 1. Because for a tree there exists exactly 1 region, that is the unbounded region. So whenever n is greater equal to 4 and G is a tree, then E is equal to n minus 1. तो n का वैल्यू अगर 4 या फिर ज्यादा होगा तो n minus 1 का वैल्यू क्या होगा? 3 या फिर उससे ज्यादा होगा। और f का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो फिर से ये वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, तो 3 greater equal to 3 by 2 into 1. तो obviously the relation is satisfied. Now if we think about n greater equal to 4 and the graph is not a tree, then it must contain a circuit or cycle. ठीक है, लेकिन ये ग्राफ पे सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज नहीं रहेगा। तो अभी हम लोग अगर ये ग्राफ पे सेल्फ लूप पैरेलल एज नहीं है और हम लोग एक रीजन चाहते हैं, बाउंडेड रीजन चाहते हैं सर्किट से, तो मिनिमम कितना एज हम लोग को चाहिए? हर एक बाउंडेड रीजन के लिए मिनिमम हम लोग को तीनों एज चाहिए, ठीक है ना। जैसा ये ट्रायंगल होता है, ये तो एक मिनिमम बाउंडेड रीजन है। मिनिमम बाउंडेड रीजन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई सेल्फ लूप या फिर पैरेलल एज नहीं है। अगर सेल्फ लूप रहता तो वो एक ही काफी होता, लेकिन ग्राफ सिंपल है तो सेल्फ लूप पैरेलल एज हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। तो मिनिमम कितना बाउंड एज चाहिए एक रीजन को बाउंड करने के लिए? तीनों एज चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, सम ऑफ नंबर ऑफ बाउंड्री एजेस फॉर ईच रीजन इज ग्रेटर इक्वल टू 3। अभी सोचो अगर ये ग्राफ का रीजन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ये है 1 रीजन, 2, 3 and 4. There are 4 regions. Now whenever you are calculating this region, you are considering the age E2 one time. Whenever you calculating this region, you are again calculating the age E2. So sometimes some ages are repeated more than one time whenever you are calculating the total number of regions. क्योंकि ये एज कॉमन एज है दोनों रीजन के अंदर। फिर से जब हम लोग ये रीजन और इस रीजन को कैलकुलेट करेंगे तो ये एज एक बार आएगा
और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये एज भी एक बार आएगा। तो हर एक एज 2 बार करके रिपीट हो सकता है जब हम लोग रीजन को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस विल बी greater equal to 3 into number of the region, because for each bounded region how many minimum number of ages we required? 3. so f number of region के लिए कितना एजेस लगेगा? 3 into f simply. And for calculating each region minimum number of ages we are calculating twice, therefore 2 into e will be greater equal to 3 into f. Simple as that. Therefore e will be greater equal to 3 by 2 into f. Hence we have the theorem. And what is our second formula? That is e will be less equal to 3n minus 6. ये एक लाइन का प्रूफ है। देखो अभी हम लोग जानते हैं कि ऑयलर्स फॉर्मूला में f का वैल्यू क्या होता है? e माइनस एन प्लस टू, f इक्वल टू e माइनस एन प्लस टू। तो e ग्रेटर इक्वल टू क्या होता है? 3 by 2 into f होता है। तो f का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो, e ग्रेटर इक्वल टू 3 by 2 into e माइनस एन प्लस टू। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद ही यहाँ पे क्या आ जाता है? e लेस इक्वल टू 3n माइनस 6। ठीक है, ये तीनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बार बार मैं ये कह रहा हूं, इसको अच्छे से कॉपी पे लिख लो और याद कर लेना है। ठीक है।